very systematic manner taken the economy from very low levels that the Congress had left behind, a fragile five economy, to the world's top five, soon to become the third largest in the world, through a very, very calibrated approach to reform. And in some sense, the announcement yesterday, I think, is the largest transformational reform this country has seen in the last maybe 6 or 7 decades. 6 or 7 decades, but many people have said that the entire GST system, the number of slabs that were there, was a very complicated system. It was supposed to be one nation, one tax. It became, as Kharge has pointed out, it became something like one nation, 9 taxes. Do you think these reforms which have come today could have come earlier to simplify both the lives of the common man as well as the MSME sector? I think Kharge ji ho, Rahul ji ho, they don't realize what GST had replaced in 2016-17. At that time, there were a plethora of taxes, levies and duties, more than 35-40 of them. And the aggregate value of the various taxes was at different levels. The state governments were at that point of time largely run by the opposition party. This before we came in and started ruling winning all most of elections. the, Winning all after elections. Modi ji won 2014 and took leadership of the party and the country. And we had to ensure revenue stability, revenue continuity. And in hindsight, it's very easy to say this should have been done earlier. But the fact is, when it was done, a consensus was forged, and not an easy consensus. Congress couldn't do it in 10 years. But Arun Jaitley ji, under Prime Minister Modi ji's guidance, achieved what was considered impossible. And promised to compensate states for 5 years, which Congress was never willing to do. And therefore, the different rates were necessary. Having said that, every rate was fit into a slab which was lower than the then prevailing cumulative taxes. So if a product like cement, let's say, the aggregate tax, excise duties, sales tax, central sales tax, octroi, all of them put together was coming to 31-32%. We fit it in 28. And now with the growing economy and with the growing GST collection, Prime Minister Narendra Modi was able to actually reduce it drastically to 18%, which will give a big boost to the middle class home ownership dreams. So I think this has been a very consistent, calibrated process. In 2018, so many products, hundreds of products, the taxes were reduced. So it has been a continuous process, but what Prime Minister Modi did yesterday was truly a game changer. So let me ask you, पीयूष गोयल जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है. ये सारी चीजें जीएसटी उन्होंने सोची थी, आपने लागू की. ये जो 2 स्लैब्स हैं उन्होंने कब से बताए हुए हैं. वो तो राहुल गांधी का कोई पुराना ट्वीट भी डाल रहे हैं कि राहुल गांधी का ये रिकमेंडेशन था. आपने अब जाकर उसमें मेरिट देखा है और उसे किया है लागू. मैं पूछना चाहती हूँ, वाकई सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है? एक प्रकार से राहुल गांधी जी अपनी नाकामियों के बारे में खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राज जब इतने वर्षों तक चली, उन्होंने तो बजाय उनकी सरकार के पारित किए ऑर्डिनेंस को आप मीडिया के सामने फाड़ के अपने खुद के प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती करना, उसके अलावा तो उन्होंने कोई अचीवमेंट देश के सामने रखा ही नहीं है. तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जो नहीं कर पाए उसको आज एक कवच में डाल के कोशिश करते हैं बताने की कि हमारी सोच थी, वो सोचते रह गए. मोदी जी करने में विश्वास रखते थे और हर एक चीज मोदी जी ने जो की है उससे आज जो देश में एक पूरा उल्लास का माहौल है, पूरे जो उत्साह का माहौल है, जिस प्रकार से 140 करोड़ लोग विकसित भारत 2047 की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, गरीबी 25 करोड़ लोगों की खत्म हुई है. आज जीएसटी के इस परिवर्तन से पूरे 140 करोड़ हर व्यक्ति को जीवन में फायदा होगा.
ऐसा एक व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिनको इन सब चेंजेस से कुछ ना कुछ लाभ, कम ज्यादा हर एक को लाभ होने वाले। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये थोड़ा पहले कर देते या अब थोड़ा सा रीइंबर्स कर दीजिए लोगों को, क्योंकि आम यूज की चीजें, खाने पीने की चीजें, टूथपेस्ट हो, टेबल पर लाने वाली सामग्री, इन सब पर जो टैक्सेस आपने 18% रखे हुए थे, 12%, अब आपने 5% किया, पहले कर देते। हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मिडिल क्लासेस के लिए है नहीं इस देश में। आपने हेल्थ इंश्योरेंस पर इतनी लंबी चौड़ी जीएसटी लगाई हुई थी, ये थोड़ी पहले अगर होता तो क्या होता? जब कुछ चीज मिल जाती है थोड़ा लालच भी आ जाता है कि ये थोड़ा और पहले मिलना चाहिए था। उस दृष्टिकोण से आपकी बात देखी जाए, ये लालच की बात है। लालच की बात नहीं है, लालच ये आता है कि ये मिल गया तो उसके बेनिफिट्स, उसका लाभ तो मिल ही गया, पॉकेट में आ गया। मैं समझता हूं आपको ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने कहा कि उस समय भी सर्विस टैक्स था, सब इंश्योरेंस पॉलिसीज पे सर्विस टैक्स लगता था, तो उस समय के टैक्सेस रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए राज्यों के, और 14% हर वर्ष 5 साल के लिए गारंटी करना था कि उनको उतना मिलते रहेगा, और कोविड के समय भी दिया गया। और जब तक वो पूरा रिइंबर्समेंट नहीं हो जाता है तब तक इतना बड़ा बदलाव शायद संभव भी नहीं होता। आखिर ये सब निर्णय कंसेंसस से लिए जाते हैं, कल के भी सब बदलाव कंसेंसस से हुए। कई हमने प्रस्ताव पहले रखे हैं जीएसटी काउंसिल में, जहां विपक्षी दलों ने अपोज करके हमें करने भी नहीं दिया। कई बार आपने देखा है पहले के दिनों में। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को समय के अनुसार समय समय पर लोगों को लाभ देने का काम किया है, इससे जनता में खुशी की लहर है। 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगेगा इस साल के बजट में, आप को ध्यान होगा। तो एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है मोदी जी का कि लोगों तक लाभ पहुंचे, लोगों का जीवन और अच्छा हो। और अब तो ये शुरुआत है, अब तो और बहुत सारी चीजें मोदी जी के ध्यान में आई हैं, उनके मन में है कि हमें और बहुत सारे बदलाव इस देश में लाने। लोगों का ये भी कहना है कि शायद 2024 से पहले आप मिडिल क्लास, जो बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, वो उस क्लास को थोड़ा आप भूल गए थे। अब ये जो बजट के दौरान आपने कहा टैक्स ब्रेक्स मिले, अब ये जीएसटी रिफॉर्म्स आए, क्या मिडिल क्लास की दोबारा याद सताने लगी है? क्योंकि इस बार के चुनाव में नंबर सीटों के थोड़े घट गए थे। परिस्थिति आर्थिक किस प्रकार से डेवलप हुई है उसके आधार पर लाभ देने का काम और हमारी क्षमता बनते रहती है। अब आपको ध्यान होगा कि इन्फ्लेशन, महंगाई आज 1.55 पे आ गई है, लोएस्ट है। वर्षों में इतनी कम महंगाई की दर नहीं रही है। पर ये करने के लिए समय लगा, ये करने में बहुत मेहनत लगी, ये करने के लिए बहुत कदम उठाने पड़े। तो ऐसे समय पर हर एक चीज उस समय की आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से तय होती है। आप लोग के लिए चुनाव का परिणाम और उसके चश्मे से देखने के एक आपकी तरफ से जायज है, आप सोच सकते हैं उस तरीके से।